بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرتھر کونن ڈوئل کی ایک کہانی ہے جس میں ایک بائک کا واقعہ ہے، اور اس کو میں اپنے انداز میں کراچی کے کانٹیکسٹ میں بنا کے ذکر کر رہا ہوں۔ بھائی سین یہ ہے کہ ایک نواب لڑکا، ایک مالدار لڑکا دانش جمالی کینٹ اسٹیشن پہ اترا ہے۔ یہ ایک مالدار لڑکا ہے، خاندانی زمینیں ہیں، خاندانی کاروبار ہیں ان لوگوں کے، تو بڑی پرتعیش زندگی، آسان زندگی ہے، بس زمینوں کے چکر لگاتا ہے اپنے، دیکھتا ہے کاموں کو۔ اس وجہ سے اس کو شہر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ابھی سکھر سے آ رہا ہے، سکھر میں اس کی زمین ہے، وہاں سے ذرا چکر لگا کے واپس آئے۔ اچھا، اس کے پاس ہر نعمت ہے۔ پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں اس کا ایک شاندار سا محل ہے، اور اس کا شوق ہے گاڑیاں بدلنا اور بائکس بدلنا۔ تو اس کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جمالی صاحب کا، دانش کا کیا شوق ہے، تو ہر 5-6 مہینے بعد یہ بائک بدلتا ہے۔ اس میں اس کے جو ملازمین ہیں ان میں سے خاص ملازم ہے امام بخش، وہ بہت آگے آگے ہوتا ہے، وہ پرانا آدمی ہے ان کا، اور امام بخش جو ہے سارے خاندان کا ملازم ہے اور ان کے مزاج کو سمجھتا ہے، تو وہی مدد کرتا ہے دانش کی بائکس وغیرہ کی خریداری میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب دانش جمالی اسٹیشن پہ اترا ہے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا ہے کہ امام بخش نظر آئے۔ امام بخش ہی اس کو لینے آتا ہے، اصل میں امام بخش ہی اس کو ریسیو کرنے آتا ہے ایئرپورٹ میں، ذرا سمجھدار آدمی ہے، اور باقی ملازمین کا سپروائزر بھی وہی ہے، تو وہی آدمی آگے آگے ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اب جب یہ ریلوے اسٹیشن پہ اترا ہے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، امام بخش کو ڈھونڈا، آخر اس کو دور سے امام بخش نظر آ گیا۔ امام بخش کو دیکھتے ہی اس کو سکون ہے کہ چلو اب کام اچھا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، کیونکہ امام بخش ذرا سمجھدار آدمی زیادہ ہے۔ امام بخش نے اس کو ایک دم آگے بڑھ کے جھک کے سلام کیا، سر کیسے ہیں آپ کی بڑی کمی محسوس ہوئی، میں آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیا سرپرائز دینا چاہتے تھے بھائی تم؟ سر وہ آپ کو پتا ہے نا، آپ کو بائکوں کا شوق ہے، تو آپ سوزوکی 150 چلا رہے تھے ایک عرصے سے، اب میں آپ کے لیے اس سے بہتر ایک آپشن لے کے آیا ہوں۔ اچھا، بہتر آپشن لے کے آئے؟ کیا آپشن لے کے آئے ہو؟ سر بس آپ دیکھیں گے نا تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی اس امام بخش غلام نے، ملازم نے، جو ان کا نوکر ہے، آگے بڑھ کے دانش جمالی کے دونوں بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اچھا، یہ چونکہ نواب گھرانہ ہے تو لوگوں کو کام کاج کی عادت نہیں ہوتی، یہ ملازم ہی سارے کام کرتا ہے، بوڑھا ملازم ہے لیکن بڑا ایکٹیو آدمی ہے۔ اس نے دونوں بیگ ہاتھ میں لے لیے اور دانش جمالی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب پارکنگ سلاٹ میں پہنچے تو دانش جمالی کے سامنے اس نے کہا، سر ایک نظر ذرا آپ لیفٹ پہ دیکھیں، یہ آپ کی نئی بائک ہے۔ تو دانش جمالی نے ادھر نظر دوڑائی تو ایک دم ششدر رہ گیا، اس کی بینیلی 150 کھڑی ہوئی تھی وہاں۔ بولے، سر کیسا انتخاب ہے میرا؟ یار زبردست انتخاب ہے تمہارا، کیا بائک ہے یار، یہ اٹیلین بائک ہے نا؟ ہاں سر اٹیلین بائک ہے، پاکستان میں ابھی 150 کیٹیگری میں بہترین بائک شمار ہو رہی ہے۔ اچھا، زبردست یار، لیکن یار دیکھو اس کا میں نے سنا ہے کہ زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ میکینک وغیرہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نہیں نہیں سر، میکینک کی بات ہی چھوڑ دیں، یہ ای ایف آئی انجن ہے، اور اس کے پارٹس آپ خود بھی الگ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایسے انہوں نے آپشن رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ذرا سی محنت سے، ذرا سی سمجھ بوجھ سے اس کے پارٹس الگ کر کے خود جوڑ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اور شاکس میں ایک ہی نظر آ رہا ہے؟ سر اس میں ایک شاک ہے جو کہ بیچ میں لگا ہوا ہے، اس سے پوری باڈی بیلنس میں رہتی ہے، یہ نہیں ڈبل شاکس لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹیڑھے ہو رہے ہیں اور کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے، بیچ میں شاک لگا ہوا پوری باڈی کو اٹھاتا ہے، اس سے اس کا الگ ہی کچھ بیلنس میں معلوم ہوتا ہے۔ اور سر یہ دیکھیں اس کے جو آگے پیچھے کے ٹائر ہیں دونوں میں ڈسک بریکس ہیں، ڈسک بریکس آگے پیچھے میں مجھے نہیں معلوم کسی بائک میں آیا اب تک، تو اس سے بائک کی بریک بڑی زبردست ہے، بہت نرم اور مزے کی بریک لگتی ہے۔ اور سر اس کی آپ بیک دیکھیں، اس کی آپ لائٹیں دیکھیں، الگ ہی سر چیز ہے یہ، اور وزن اس کا بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ اور برانڈس کی 150 دیکھیں تو وہ بہت بھاری بھاری بنی ہوئی ہے، ان کی پک بھی بہت کم ہے، اس کی آپ پک دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، اس کی سپیڈ بھی کافی آگے جاتی ہے۔ اگر آپ ہونڈا 150 کی بات کریں وہ تو 100 سے اوپر جا ہی نہیں رہی ہوتی، اس کو آپ چلائیں گے سر آپ حیران ہو جائیں گے، یہ آرام سے 110 120 پہ چلی جاتی ہے۔ دانش جمالی سنتا رہا، حیران ہوتا رہا، ایک طرف وہ اپنے نوکر کی معلومات پہ بھی حیران تھا، ایک طرف بائک کے انتخاب پہ بھی خوش تھا۔ آخر وہ بولا، یار مان گیا تمہارے انتخاب کو، چلو اب چلتے ہیں یار، آؤ چابی دو مجھے جلدی۔
मामक्स ने कहा सर जी चाबी मेरे पास रहने थे, आप थके हुए आए हैं, ये गुलाम खड़ा हुआ है आपका, चलाएगा, आप परेशान क्यों होते हैं। दानिश जानता था कि इसका मुलाजिम हर काम खुद करने की कोशिश करता है और उसको ज्यादा से ज्यादा आराम देता है, लेकिन अभी दानिश बाइक चलाना चाह रहा था। दानिश ने कहा इमाम बख्श ये बताओ कि अगर मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, तुम बाइक चलाओगे तो फिर बैग तो मुझे पकड़ना पड़ेंगे। इमाम बख्श ने हाँ सर ये तो है। दानिश ने कहा चलो चाबी निकालो फौरन। चाबी उसको दी, चाबी भी एक अलग तरह की, अलग ही अंदाज की, वो इसमें लगाई, अलग आवाज से बाइक स्टार्ट हुई। इमाम बख्श ने कहा सर एक चीज प्लीज, सर इसके गियर उल्टे लगते हैं, आप जो बाइक चला रहे थे ना अभी तक, उसमें गियर इस तरह नहीं लगते, उसमें गियर नीचे लगते हैं, इसमें गियर अलग तरह लगते हैं। जब आपको गियर कम करना हो तो आपको उसी पाँव से उसी जगह से ऊपर उठाना होता है गियर, बस इसका ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभार गलती होती है। अच्छा दानिश के लिए ये बात थोड़ी नई थी, लेकिन दानिश जाहिर नहीं करना चाहता था कि इसका मुलाजिम इससे ज्यादा जानता है। दानिश ने कहा हाँ मुझे पता है, ये बातें नहीं बताओ, बच्चों वाली बातें नहीं करो यार, बैठो। ये अंदाज होता है बड़े घरानों का कि मुलाजिम को इज्जत तो देते हैं लेकिन उनको दबा के भी रखते हैं। तो खैर मुलाजिम पीछे बैठ गया, दानिश ने आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाना शुरू की, बड़े मजे की नरम नरम चल रही है बाइक, और शॉक्स ने देखे बहुत नरम है, बड़े बैलेंस में है सारे शॉक्स। चलाते चलाते उसने गियर लगाया और बाइक ने पिक लिया आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो कैंट स्टेशन से निकल के मेन शारा फैसल पे आ गया, मेन शारा फैसल से आगे गया और अवारी टावर्स के सामने से उसने यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके उसने जनाब अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ना शुरू की। इस मौके में जमाली ने कहा सब थोड़ा सा देख लें जरा, स्पीड का मामला ये नई आपके लिए है ना, तो आप थोड़ा सा इसको आहिस्ता चला रहे हैं। यार मुझे नहीं बताओ, ये सारी बातें मुझे पता है, मैं एक अरसे से बाइक चला रहा हूँ, तुम्हें क्या एक बाइक के बारे में जाननी है, मुझे सिखा रहे हो। इमाम बख्श खामोश हो गया। दानिश ने बाइक अब ज़रा रफ्तार में चलाना शुरू की और बाइक ने रफ्तार पकड़ना शुरू की, और दानिश को मज़ा आना शुरू हुआ। अलग ही इस बाइक की ना, इसको बिल्कुल अलग ही सी पिक नज़र आई। पहले जो बाइक चलाता रहा था वो भी अच्छी थी, लेकिन ये जो बाइक थी ना, इसका इसको अलग ही सब मज़ा आना शुरू हो रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ना अब लापरवाही की तरफ जा रहा है। इमाम बख्श फिर बोला सर ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़, ये जो है ना इसकी गियर शिफ्टिंग उल्टी है, गियर इसके उल्टे रखते हैं। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं देख रहा हूँ। तो ये क्या किया ना फिर अ, दानिश ने स्पीड बढ़ाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, और अब वो शारा फैसल पे रफ्तार से जाना शुरू हुआ। ये चलने वाली है और मुझे से दौड़ाता हुआ जा रहा है, तो अलग ही मजा आ रहा है। और उसका मुलाजिम पीछे बैठा हुआ है जो इसको बैग पकड़ रहा है। इसी रफ्तार में चले जा रहे हैं शारा फैसल पे, तकरीबन 11 किलोमीटर दूर इनका घर है। पहले शारा कायदीन आएगी, फिर शहीद मिल्लत वाला रास्ता आएगा, और उस पर इनको मुड़ना है। अच्छा जब ये लोग इस रफ्तार में जा रहे थे तो एक जगह अचानक जैसे होता है ना कि वो जो ये जो रेडी वाले होते हैं तो ब्रेकें लगाई, दानिश ने बहुत जोर, बाइक ने एक चीख सी मारी ब्रेकों से जोर के बाद से, बाइक एकदम स्लिप हुई बुरी तरह। दानिश जमाली डिस्क ब्रेक का आदी नहीं था, उसको डबल डिस्क ब्रेक की आदत नहीं थी, पूरी तरह बाइक पूरी यूं हुई है। मुलाजिम के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, सर देख के प्लीज सर। दानिश ने कहा भाई मुझे पता है, मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ कि इसकी ब्रेक्स कितनी अच्छी हैं, हालांकि दानिश से गलती हो गई थी, वो मानना नहीं चाह रहा। और दूसरी गलती दानिश से ये हुई थी कि उसने उल्टा गियर लगाया था, गियर कम करने की वजह से अगला गियर लगा दिया था। खैर ये लोग बच गए। अंदर से दानिश भी बहुत डर गया है, लेकिन जाहिर नहीं करना चाह रहा, इसलिए जो है ना इसने दोबारा बाइक दौड़ाना शुरू की। बाइक दोबारा दौड़ाना शुरू की, और अब जो है ना ये जनाब इसको तकरीबन 100 पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ये 100 पे लेके नहीं गया था, लेकिन अब इसका इसका जो है ना वो शौक ये है कि मैं इसको और इसकी स्पीड, पीछे बेचारे मुलाजिम की जो है ना वो हालत खराब हो रही है। खैर इसी दौरान इनका जो है ना वो इलाका आ गया, और वहां टर्न होने की जगह आई। दानिश को एक अजीब सी चीज सूझी। दानिश ने कहा कि क्यों ना मैं हिल पार्क की तरफ से जाऊं, हिल पार्क में थोड़ी सी चढ़ाई है, पहाड़ की तरफ से एक रास्ता बनता है, मैं वहां से लेके जाऊंगा। तो दानिश ने बाइक टर्न करके ब्रेक लगाई है, और उसने एकदम बाइक को मोड़ा है। टर्न करके जो ब्रेक लगाई ना तो डिस्क हिली है बुरी तरह, वो बाइक का बैलेंस आउट हुआ है, लेकिन बाइक फिर भी गिरने से बची है, और बाइक चढ़ी है एक ऊंचाई पे, ऊंचाई पे चढ़ गई है बाइक, और अब अगली डिस्क ब्रेक से खड़खड़ की आवाजें आना शुरू हुई, जैसे कि डिस्क कुछ हल्की सी डैमेज हुई है, सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया है।
मुलाजिम ने फिर दरखास्त की, सर देख ले कुछ मसला हो रहा है, मैं चला लूँ? दानिश ने कहा नहीं नहीं सर सब सही है, कुछ नहीं, वो देख लेना बाद में। अब दानिश चढ़ा हिल पार्क की रोड पे और हिल पार्क के करीब पहुंच गया है। हिल पार्क का गेट जब सामने आया तो दानिश जोर जोर से हॉर्न दिया, तो एक चौकीदार बैठा था, जल्दी से गेट खोल दिया। वो हिल पार्क के अंदर आया और अंदर भगाता हुआ ले गया, और अंधेरे में थोड़ी सी इससे गलती हुई कि बजाय कि गेट की तरफ जाता है, ये पहाड़ी के एज से होता हुआ एकदम नीचे सड़क पे छलांग मार के बाइक से आया है। बाइक ने जंप मारी है, जंप मार के ये लोग रोड पे आए। जोर का एक धचका लगा, बाइक को जोर का झटका लगा और बाइक की अगली डिस्क डैमेज होकर निकल गई। बाइक की अगली डिस्क बिल्कुल डैमेज होकर निकल गई और अब ये लोग तेजी से जा रहे हैं। मुलाजिम ने फिर दरखास्त की, सर अब छोड़ दें, अब मैं पीछे की देख रहा हूँ, खाली एक ब्रेक रह गई है, मुझे दें, मैं इसको संभाल लूंगा। दानिश उसकी बात सुनी सुनी कर दी और बाइक को तेजी से भगाता हुआ ले जाने लगा। इनका घर करीब है। ये लोग चलते रहे स्पीड से, अभी भी स्पीड कम नहीं की, 70-80 की स्पीड है। आखिर दूर से इनको अपने घर का गेट नजर आया। घर का गेट नजर आया तो दानिश ने ब्रेक लगाई, आगे की ब्रेक तो थी नहीं, इससे पीछे वाली जोर से लगाई। पीछे वाली जब जोर से लगाई तो बाइक का बैलेंस खराब हुआ, एक डिस्क ब्रेक है पीछे, बाइक पूरी घूमी और घूम के एकदम कलाबाजी खाई और जोर का धमाका हुआ और दोनों हवा में उछले, दोनों हवा में उछले और एकदम सारा अंधेरा छा गया दानिश की आंखों के आगे। जब दानिश की आंख खुली तो इसने देखा कि वो एक खाई में पड़ा हुआ है, एक डिच सी है, गढ़ा सा उसमें पड़ा हुआ है। उसको याद आया कि ये जो एरिया, ये झील पार्क के आसपास का इलाका है जहाँ एक गड्ढा सा है, वहाँ एक गिरा हुआ है और तकरीबन 10 फीट गहरा गड़ा है। और उसको अपने घर का गेट दूर से नजर आ रहा है और उसकी प्यारी बाइक बीच में से बिल्कुल मुड़ी हुई है और उसका रुख ऊपर की तरफ हुआ है और लाइटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ जमा हैं और किसी को संभाल रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं। अच्छा, दानिश को हैरत इस बात पे हुई कि दानिश के अपने जिस्म पे कोई चोट नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ नहीं है। उसे दूर से देखा तो वो लोग इसके मुलाजिम इमाम बख्श को संभाल रहे थे और वो जोरों से चीख रहा था, दर्द से करा रहा था। एक मजमा जमा हुआ है वहाँ। दानिश ने लोगों को आवाज दी, मेरी बात सुनो भाई, इधर आओ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर दानिश को लगा कि कोई उसके सर पे हाथ फेर रहा है। उसने एकदम देखा तो उसकी प्यारी वालदा वहाँ खड़ी हुई थी, उसके सर पे हाथ फेर रही थी। दानिश की वालदा की आदत थी कि जब भी परेशानी होती थी तो दानिश के सर पे हाथ फेरती थी, उनकी बहुत शुरू से आदत थी और दानिश को इससे बहुत सुकून मिलता था। तो दानिश को इससे खुशी हुई, सुकून मिला। फिर से कहा, अम्मा ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? अम्मा ने कहा, बेटा बस सब सही हो जाएगा, छोड़ो। अम्मा ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। दानिश ने फिर आवाजें दी, कोई भी दानिश की तरफ नहीं आया और सब उधर ही बाइक और उस जख्मी मुलाजिम के पास खड़े होके उसको संभालने की कोशिश में लगे रहे। दानिश फिर अपनी अम्मी की तरफ मुड़ा, अम्मी आप बताएं तो ये लोग मुझे क्यों नहीं देखने आ रहे, मुझे क्यों नहीं संभाल रहे, मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं रहे? उसको एक अजीब सा ख्याल आया कि जब ये लोग यहाँ नहीं आ रहे तो अम्मी यहाँ कैसे आ गई? इतनी गहरी खाई है, इसमें अम्मी कैसे उतर आई? तो एकदम उसके जहन में खौफनाक ख्याल आया। ख्याल यह है कि अम्मी का इंतकाल तो 8 साल पहले हो चुका है, 8 साल पहले अपनी दुनिया से जा चुकी है, तो यहाँ कैसे आ गई? उसने एकदम अपनी अम्मी की तरफ मुड़ के पूछा, अम्मी आप तो इस दुनिया से जानी चुकी थी? उसकी अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, मैं जा चुकी थी और तुम भी अब मेरे साथ ही हो।